بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ابھی تک کی جو ہم تک اطلاعات ہے اس کے مطابق 40 لاکھ افغان شہری پاکستان میں دہائیوں سے مقیم ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس ٹائم جو اسکلیشن چل رہی ہے اسپیشلی بارڈر کے حوالے سے، جس میں پاکستان کو ظاہر سی بات ہے ریٹیلیٹ تو کرنا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، اور اتنے عرصے سے افغانستان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں ہیں اس کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے، لیکن اس کو روکنا تو درکنار، جس طرح سے افغان گورنمنٹ ہے اس وقت، جو کہ خود اس کو اپنی لیجٹمیسی کا بہت بڑا ایک کوشچن ہے کہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور پہلے تو خیر انہوں نے بھارت کے گود میں بیٹھ کے خوب وہاں سے پاکستان کو تھریٹننگ سٹیٹمنٹس دیں، ایون ہمارے انٹرنل معاملات میں بھی جو ہے انہوں نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب یہاں سے کڑا جواب ملا اور جب ہماری فورسز، ہماری جوانوں نے، ہماری بہادر فورسز نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، تو اس کے بعد اب وہ گھٹنوں بھی آ گئے اور وہ اب منتیں بھی کر رہے ہیں سیز فائر کی۔ خیر کل 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر تو ہو گیا، جو کل 6 بجے سے نافذ العمل ہونا تھا ہو گیا بلکہ، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر تو ہو گیا ناظرین، ٹیمپریری سیز فائر ہے۔ سیز فائر افغانستان پاکستان میں طالبان رجیم کی درخواست پہ ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ وہ گھٹنوں پہ آ گئے۔ پہلے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم نے یہاں پہ امریکہ کو بھی بھگتا ہے، ہم نے یہاں رشیا کی بھی وہ بات کر رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے خیر پاکستان کو بھگتا نہیں تھا نا، پاکستان نے تو ہمیشہ اس کو اسلامی برادر ملک کنسیڈر کیا تھا۔ جو بھی اسٹریٹجی رہی ہے، معاملات ہمیشہ آئیڈیل نہیں رہے پاکستان اور افغانستان کے، لیکن پھر بھی اپنا دشمن ملک کنسیڈر کبھی بھی پاکستان نے نہیں کیا تھا۔ لیکن وہاں سے جو معاملات ابھی ہو رہے ہیں اس سب کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پہ حملہ کیا، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنی پڑی ہے۔ تو اس سب پہ بات کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہے، ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ بہت سمجھداری ہے پاکستان کی کہ وہاں سے سیز فائر کی ریکویسٹ کی جاتی ہے اور پاکستان مدبرانہ ایک سوچ کے ساتھ اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیمپریری ہی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ 48 گھنٹے کے لیے مان جاتا ہے کہ سیز فائر ہم کرتے ہیں۔ معاملات آگے حل ہوتے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے وہاں سے کچھ سیٹلمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اب جس سے انہوں نے سیز فائر کی 4 ریکویسٹ کی، بار بار کہا کہ ریکویسٹ کرتے ہیں، پاکستان ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا، پھر انہوں نے مڈل ایسٹرن کا ڈالا، ان کی جہت سے ہم ڈیٹ ہوا دیا تھا، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں آج مومن میں انہوں نے 50 جو تھے وہ لوگ جو فوجی وہ بھیجے ہیں اور وہ ان کو پھر پاکستان مسلح کو مار اس کا بھی حرکت کریں کہ کیسے رہتے خاص طور پر اس وقت یہ کرتے ہیں کہ فائرنگ کر اور اس کی بریگیڈیئر صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے، کائنڈلی اس ایشو کو فکس کیجئے گا۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ تو اس میں یہ کرتے ہیں جان کے فائرنگ کرتے ہیں، پھر اٹرنی لیول کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو یہ بارڈر پار لا دیں۔ بٹ ہم نے اب ہر جگہ گارڈ کیا ہوا ہے، دیر از نو کوشچن کہ ہم ان کو چھپنے دیں یا پاکستان کے اندر آنے دیں، اور وی آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ۔ اگر یہ کل شام تک جو 48 آورز ہوں گے اس میں یہ کچھ سبق نہیں سیکھتے ہیں جو ہم نے ان کا نقصان کیا ہے، ان کی 22 پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے بعد اس کے بعد 6 ہم نے ٹینک پوزیشن اڑا دی، کرو کو مار دیا، ایک عام کمانڈر مارا گیا، اور یہ پرابلم یہ شو یہ کریں گے کہ جی ہمارا افغان طالبان ہمارا کوئی چکر نہیں رجیم کا، یہ خوارجی بھی کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہے، ان کے علاقے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے جو 200 لوگوں کو اٹیک کیا پاکستان کی پوسٹوں کے اوپر، اس میں خوارجی اور افغان طالبان اکٹھے تھے، دیٹ مینس کہ دیٹ کم فرام افغانستان۔ اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب میں نے ایک اور سوچا ہوا ہے، اگر یہ اب نہیں کرتے تو ہم ان کے علاقے میں جا کے گھس کے ان کے سارے جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ ہم ڈسمنٹل کریں گے، ان کے ایڈمنسٹریٹو کیمپ کریں گے، اور پھر ان کے کمانڈر داعش کے اور فوجیوں ان کو بھی ہم ماریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو افغانستان کا سین شروع ہوا ہے سر، اس پاکستان نے بہت میسو سٹرائکس کی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم نے بتانا تو ہے نا کہ اپنی سوورنٹی پہ کسی طرح کا ہم نے کوئی کمپرومائز تو کرنا نہیں ہے اب، لیکن اس میں 2 پیٹرن جو میں نے آبزرو کیے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ اگر نقشے پر دیکھیں
जैसे पहले दिन भी हमला हुआ, दूसरा हमला भी हुआ। नक्शे पर देखें तो लगता है कि जो एंटायर ड्यूरेंट लाइन की लेंथ के साथ साथ वो लोग आ रहे हैं, और ड्यूरेंट लाइन वाला मसला एक मरतबा फिर से उठाया जा रहा है वहाँ पर। वहाँ ये आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि पाकिस्तान में तो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ये तो हमारा इलाका है, तो हम अपने इलाके में जो कुछ मर्जी कर रहे हैं करते रहें या हम कर रहे हैं। सर, ये आपके ख्याल में मुनाफिकत कर रहे हैं या टीटीपी को ये रोकना नहीं चाहते? ओवरऑल अगर देखें तो सोल्यूशंस तो बस दो ही है ना, दो ही ऑप्शंस हैं। या तो ये इनके इतनी सख्त नहीं है कि टीटीपी को रोक सके, या ये टीटीपी को रोकना नहीं चाह रहे हैं। आपके ख्याल में इस ऑप्शंस में पाकिस्तान ने सीज फायर किया तो है, 48 घंटे के लिए टेम्परेरी सीज फायर हुआ है। सीज फायर के क्या समरात क्या होंगे इस सारे सिचुएशन को देखते हुए? देखें, एक बात क्लियर करें, ये जान के ये इनके कंट्रोल में है, इनकी आइडियोलॉजी ये अफगान तालिबान की और ये ख्वारिजों की एक ही है, नंबर एक। नंबर टू कि ये सदरन पंजाब, सदरन ये जितना ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर इनका होल्ड है क्योंकि सारे पश्तून हैं साउथ में, और वहीं पर ये ख्वारिजी भी हैं, 10 फरासान ग्रुप भी है, इसलिए कि इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये जान के कंट्रोल नहीं करते हैं और कहते हैं कि वहाँ हमारे पास तो है ही नहीं, कमांडर भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो अभी इनके खुद तो ख्वारिजी है, वो साथ ही मिलकर उन्होंने अटैक किए चाहे अफगान तालिबान ने, तो हम कैसे मान जाते हैं? और सेकंड ये कि अब इनको समझ आना चाहिए, हमने इनसे एक ही बात की है, हम हमेशा डिमांड एक करते हैं, आपने कमिटमेंट की थी कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं करें जी, दोहा अकॉर्ड, तो आप इसको ऑनर दोहा पे वो करें। हम इसके अलावा इनको देखें, चीनी देते हैं, गंदम देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, हर किस्म की एग्रीकल्चर सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा भी अगर आपने देखा हो, हम इनको ग्रांट ट्रांसलेट भी देते हैं, इनको हर चीज देते हैं। आज हमने एज ए रिटेलिएशन आज अफगान ट्रांसलेट इनका हमने बंद कर दिया है। हालांकि हमें बड़ी तकलीफ इसलिए कि ये अफगान अवाम को तकलीफ होगी, जो हमारे भाई हैं, दोनों तरफ पश्तून हैं, इनको क्योंकि ये इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है। अफगान तालिबान रिजीम जो है ये इलीजिटिमेट है, ये ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना पॉलिटिकल एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना ताजिक है, ना उज़्बेक है, ना हज़ारे की हुकूमत है, इनको कोई नहीं मानता। इसलिए अफगान अवाम को चाहिए कि वो इनके खिलाफ खड़े हों और अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए ताकि कम से कम अमन हो सके। इसलिए ये नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान हम इनका ये चीनी आटा ये और ये फर्टिलाइजर ये भी बंद कर देंगे। ये क्या करेंगे? स्टार्व होंगे, भूखे मरेंगे। ये हम नहीं चाहते अपने अफगान भाइयों के लिए, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। ये मर्सरीज हैं, ये डीलर्स हैं, पैसा जो देगा उसके लिए काम करते हैं, इसलिए इंडिया से होके आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, जब हम पहले दिन जब हमला हुआ था और हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, तो नज़र आता था कि हमारे पास जो है पूरा एक डाटा मौजूद है, हमें पता है एग्जैक्टली कि कैंप्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पर उनके लोग छुपे हुए हैं टीटीपी के। और क्या पाकिस्तान को इस मर्तबा अगर इस सारे सिचुएशन को देखते हुए ओवरऑल में अगर आपसे एक लार्जर स्केल पे बात करूं, तो क्या मैसिव जिस तरह से एक इस सिचुएशन है, मैसिवली एक क्लियर मैसेज जो है क्लियरेंस कर देनी चाहिए थी, या अभी पाकिस्तान कर देगा कि हम लोग पाकिस्तान की सालमियत पे तो डेफिनेटली कोई भी मुल्क अटैक करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, या अगर उनकी जानिब से ये जो एक बरादराना टाइटल हम उनको देते हैं कि इस्लामिक बरादर मुल्क है, मेरे ख्याल में इस टाइटल को भी ख़त्म कर दिया जाए और चीज़ें जो मैसिव हुई हैं उनको एक दफ़ा क्लियर कर लिया जाए, बातचीत के ज़रिए कर लें, ताकत के ज़ोर पे कर लें, जिस भी तरह से करें। देखें, ये जो अभी हम अगर परमानेंट सीज फायर पे जाते हैं उसमें ये पहली कंडीशन होगी कि नंबर 1, अफगान तालिबान रजीम हर हालत में अपने एरिया से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की तरफ नहीं आने देगी, जो कमिटमेंट है। नंबर 2, इनकी जिम्मेदारी होगी कि इनके इलाके में जितने इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप हैं, इन सब को डिसमेंटल करेंगे। मारे नहीं मारते तो फिर हमें इजाजत देंगे कि हम उड़ाएंगे। हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की सब की है, कहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप है, कौन सी जगह पे इनके बैठे हैं लोग, कहाँ पर इनके कमांडर्स हैं। हम इनके कमांडर्स को भी मारेंगे, इन सबको मारेंगे। हम अपने आप को, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ड्रोन भी है, एयरफोर्स भी है, हमारे पास इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी है। वी विल हेल्प विद देम। अब इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ पे क्लियर करते जाइएगा सर, अभी भी काफ़ी चौकियों पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है, पाकिस्तानी जवान वहाँ पे हैं। ये जो चौकियाँ कोई पाकिस्तान रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इसको
वहाँ पे अपने पास रख लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक सिंबलिज्म होती है ना, एक मैसेज कन्वे करना होता है। पहले हमले में भी जब पाकिस्तान ने 20-21 चौकियों पे हमने कब्जा किया था तो झंडे भी लगा दिए थे, फिर बाद में छोड़ भी दी थी। अभी भी एक मैसेजिंग कि हम चाहे तो आ सकते हैं, और अगर हम आ गए तो हम इवन चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं ना इस सारी सिचुएशन को। तो ऐसा नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट करने की वो कोशिश करेंगे या उनको कोशिश करनी चाहिए। तो आपके ख्याल में अभी जो एक मैसेज हमारे फोर्सेस की जानिब से इतना मैसिव स्ट्राइक्स के बाद हमारी खारजा पॉलिसी में एक स्ट्रेटजी जो आज क्लियर हुई है, इस सब के बाद जो एक मैसेज कन्वे करना हम चाह रहे थे, कन्वे हो गया अफगान गवर्नमेंट को? देखें, हमने अब न्यू नॉर्मल एक स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश कर ली है, वो इंडिया के लिए भी है और अफगानिस्तान के लिए भी है। वो ये है कि अगर कोई अग्रेशन करेगा, कोई हमारी सरहद पार करेगा, वी विल बी वेरी डिसाइसिव, वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो वी विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। और इसके लिए जो मीन्स अवेलेबल है हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस पे कोई कम नहीं करें, और पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। पाकिस्तान की सलामती बका के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की सलामती बका के लिए कॉम्प्रोमाइज। हमारे लोगों को यहाँ के मार रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को तो उसको शहीद कर रहे हैं, तो देन वी हैव नो मर्सी फॉर देम, वी आर गोइंग टू प्लेस फॉर देम आउट। इट्स वेरी क्लियर। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आप जो है ना, ये आपके रहम ख्याल खत्म, ये ठीक चलेंगे, हम नहीं चलेंगे, घुस के मारेंगे, तबाह करेंगे। ये ना लड़ सकते हैं, ना हिम्मत है, ना इनके पास कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो हो रहा है, आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी क्लियर कर दिया कि इंडिया की शय पे ये सारा कुछ किया गया है। दिस इज क्लियरली इंडियाज इंस्टिगेटेड। ये नहीं है कि ये सारा कुछ सिर्फ इंडिया के इंस्टिगेशन की वजह से हुआ, कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं। ये इंडिया ने कहा कर दो तो उन्होंने कर दिया। उसमें टीटीपी की गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी भी आती है कि कितनी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, फिर वहाँ पे उनका कंट्रोल कितना है अपने इलाके में, ये भी बड़ा कंसीडर किया जा सकता है इस चीज़ को। टीटीपी के हवाले से, सॉरी मैं पहले टीटीपी कह गई, टीटीए के हवाले से, फिर टीटीपी को लेके कि वो उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सब में आपको क्या लगता है, अब फिलहाल कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली आने वाले टाइम में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कोई इंसेंटिव तो सर दिया गया होगा ना, बिकॉज एक मुल्क है ना, तो वो ऐसे ही तो अपने हमसाया मुल्क पे एकदम से अटैक नहीं कर सकता। वो भी जो उसका मोहसिन रहा हो एक वक्त में, उसने उसके लोगों को अपने मुल्क में पनाह दी हो, तो आपको क्या लगता है दे माइट हैव बीन सम कैरेट्स सो क्लियरली कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऑफर करवाया है अफगानिस्तान को भारत की जानिब से, तभी तो अफगानिस्तान इस तरह से उनकी शय पे उसने इतना खुल के प्ले करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान के गोल्स इस सारे सिचुएशन में देखें तो क्या होने चाहिए? पाकिस्तान के गोल्स में इंडिया और अफगानिस्तान को डीलिंक करना सर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका लिंक आपस में पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। स्ट्रेटेजी आपके मुताबिक किस तरह होनी चाहिए? देखें, एक तो बड़ी क्लियर है, ये जो अफगान तालिबान रजीम है ना, ये डीलर्स हैं, ये डील करते हैं, इनको पैसा चाहिए। ये जब अमेरिकन जब यहाँ पे थे ना, यहाँ पर अफगानिस्तान में, तो ये उस वक्त भी इन्होंने बांटे भी दे दिए 50 किलोमीटर का। उसमें जो सरदार थे इनके, वो अमेरिकन इक्विपमेंट हो या फूड का जिसका भी कोई सामान हो, उसके पैसे लेते थे ये। इससे तो इंडिया से डील करते आए हैं। इंडिया ने कहा जी कि हम आपको मदद भी करेंगे, हम पूरी एम्बेसी लेकर आएंगे, काबल रिवर पे हम आपको डैम भी बना के देंगे। वो ये इनको पागलों को ये समझ नहीं आ रही है, क्या हिंदू आपका खैर ख्वाह हो सकता है? इतनी दूर बैठा हुआ वहाँ पे क्यों खर्च कर रहे हैं? वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी कर रहा है। वहाँ पर वो लिखते हैं आई लव मोहम्मद, ये उनको अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट कर ले 3000 लोगों को बंद किया गया। ये कहते हैं हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, तो फिर ये कौन से इस्लाम का ख्याल करते हैं? इसलिए ये डीलर हैं, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद लव। इसलिए मैं बात करता हूँ कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने अभी भी इनको बड़ा कहा है, हमने हमेशा एक ही बात की है, हर मौके पर कहा है, आप एक बात पूरी कर दे, हम आपको चावल, गंदम, चीनी, फर्टिलाइजर, आज हमने वांटर्स बंद किया ना, कल हम इनका लॉजिस्टिक बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। ये क्या करेंगे? अफगान अवाम तो तकलीफ होगी, जो हमारे भाई हैं, ये एनिमल हैं, ऑनेस्टी इनको समझ नहीं आती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभी भी इनके पास वक्त है, पाकिस्तान मौका दे रहा है। और हम भी अब गारंटी चाहेंगे कि सऊदी अरब या कतर या जो इनको ममालिक गारंटी दें कि आइंदा ये अपनी सर्विस किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे जब हम छोड़ेंगे। अदरवाइज वी विल गो एंड डिसमेंटल देयर ऑल कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप, ताकि एक मतलब मिले खत्म कर दें।
ब्रिगेडियर साहब, मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के अगर इकोनॉमिक एनालिसिस को देख लें, बाकी सब चीज़ों को अगर हम एक सेकंड के लिए साइड पे रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोई 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान के ऑफिशियली अपने स्टेटिस्टिक्स को रिलीज़ किया था उन्होंने। उनकी इकोनॉमी कैसी है, किस तरह से चल रही है। 70.3% एड कमिंग इज आइदर फ्रॉम द वेस्ट और डायरेक्टली फ्रॉम द US। ओनली 30% जो उनकी इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है, और वो भी क्लाइमेट चेंज और बाकी चीज़ों की डिपेंडेंट है। अगर पाकिस्तान को सर ये प्रॉब्लम इस वक्त रिजॉल्व करना है, जिस प्रॉब्लम में अभी पाकिस्तान है, तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों से राबता करना पड़ेगा जिसने इस एंटिटी को जिंदा रखा हुआ है? इन माय ओपिनियन, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। देखें, इसमें 2 मेन कंट्रीज हैं, एक अमेरिका, एक चाइना। अमेरिका इनको तकरीबन 40 मिलियन डॉलर हर हफ्ते दे रहा है। एग्जैक्टली। 9 बिलियन डॉलर में से चाइना माइनस मिलियन निकाल रहा है, उसका पैसा दे रहा है। आई मीन बात ये कि दोनों मर्ज से पाकिस्तान बात करेगी। आपने एक 7.2 बिलियन डॉलर का वेपन एमुलेशन में वो छोड़ के आगे, जो हमारे ख्याल इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें चाइना अमेरिका को कहना चाहिए कि आप गन छोड़ के आए हैं, आपने गन डाला है, आप या तो हमें फिर सपोर्ट दें, APC दें, हमें नाइट विंड के फाइटिंग कैपेबिलिटी दें, हम इनको सॉर्ट आउट करें। प्लस चाइना को कहना चाहिए इनको पैसे देना बंद करो, क्योंकि चाइना को सबसे सूट करता है कि अगर वो वहाँ अमन नहीं होगा अफगानिस्तान, तो CPEC कैसे बनेगा? CPEC नहीं बनेगा तो ये काश्कर से लेके गवाता तक का पोर्ट जो 9 दिन का फासला कैसे तय करेंगे, जबकि उंदर के रास्ते 90 दिन लगते हैं इनको। तो ये चाइना है टू थिंक ओवर इट। पाकिस्तान में आप बताएं, चाइना का कोई एक भी चाइनीज अफगानिस्तान में मरा, एक भी नहीं मरा। पाकिस्तान में क्यों मरते हैं? क्योंकि CPEC नहीं बनाने देते, और वो इंडियन प्रॉक्सी है, किस ममालिक है हमें सबको पता है। तो ये बड़ा प्लान है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, न्यूक्लियर मुल्क, इस्लामिक मुल्क, लोकेशन अच्छी है, लड़ाका फौज, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, सबके मुल्क में फसाद में फैसले करेंगे। ये वो नहीं चाहते हैं, मुझे सिंपल सी बात नहीं। ब्रिगेडियर साहब, जरा काइनेटिक साइड पे आ जाते हैं। मुत्तकी ने यह भी कहा कि ये पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अमेरिका भी आया था, रूस भी आया था, तो वो अगर सुपर पावर्स को हमने ठीक कर दिया है तो आप क्या बेचते हैं? मतलब काइनेटिकली क्या ये डूएबल है जो अब हमने शुरू कर दिया है, या रादर इट्स टेनेबल? इनका दिमाग खराब है। रशिया को निकालने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका इनके साथ था, तब रशिया गया था। इनको अकल नहीं है, इनके पास क्या है आप मुझे बताइए। इसलिए, और ये अपनी लड़ाई स्टैटिक लड़ाई नहीं लड़ सकती, ये जो बॉर्डर की लड़ाई होती है, ये तो हिट एंड रन करते हैं, आए रेड किया भागे। पाकिस्तान तो आए थे ना, हमने क्या कि 200 फौजी और ये तालिबान मार दिए, तो ये अफगान तालिबान। इसलिए ये इनको समझ आनी चाहिए कि वो इंडियन को पागल बना रहा है, और ये नुकसान इन्हीं का ही है। हम अब इनके साथ जब इनका ट्रांजिट बंद करेंगे, खाना पीना बंद करेंगे, मैं देखता हूँ उधर से ईरान ने भी इंडिया को निकाल दिया है, तो ना उधर से जा सकेगा ना हम देंगे। सेंट्रल एशिया खुद अपने मुश्किलात में है, तो क्या करेंगे? दैट्स द विषय कि इनको चाहिए कि पाकिस्तान ने बना के रखें, पाकिस्तान से बैठ के बात करें, गारंटी दें और अपने मसले को हल करें। ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे सर। अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं, उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड रेडियो के ऊपर जो अफ़गानिस्तान में एक बयान दिया है, जिस पे उन्होंने बात की है कि ये मेरा इख्तियार है कि किसको लगाऊं, किसको हटाऊं। बाकी जो शरिया के हवाले से उन्होंने कहा है कि शरिया के नीचे जो इंटरप्रिटेशन है प्रिंसिपल्स की, उसके ऊपर आप मेरे ऊपर सवालात उठा सकते हैं, लेकिन जो पार्ट स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हैं, उसमें मैं देखूंगा कि कौन लॉयल है और कौन लॉयल नहीं है। सर, अब ये जो एक अंडरस्टैंडिंग देता है उनका ये इंटरव्यू, वो भी स्पेशल रेडियो पे आके उन्होंने दिया है, उनको ये स्टेटमेंट कन्वे करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि रेडियो पे आना पड़ा, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? सेकेंडली, क्योंकि वो किसी और चीज़ पे बात तो करते नहीं अगर ओवरऑल उनकी हिस्ट्री देखी जाए, और ना ही उनके ये पब्लिक अनाउंसमेंट इस तरह की होती हैं। अब ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है, बहुत डीपली भी अगर नहीं जाते हैं, बहुत डीपली अगर नहीं जाते हैं, तो ये अनप्रेसिडेंटेड मूव ये बता देती है कि अफगानिस्तान के अंदर एटलीस्ट एक पावर स्ट्रक्चर अपनी जड़ें पकड़ चुका है, जो कि आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। इनके तो पहले से दुश्मनी है। हिकमत यार ग्रुप अलग है, जलालुद्दीन हक्कानी का अलग है, जी इनका अलग है, और सेकंड ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। एग्जैक्टली। ये तो टेम्पररी बने थे, यहाँ के जब बैठ गए, इनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही नहीं है। यहाँ पर 40% पश्तून हैं, बाकी हजारा है, उज़्बेक है, ताजिक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ये कैसे कहते हैं ये इसकी हुकूमत है? अवाम को चाहिए कि उसको उठा के फेंक के और अपनी मर्जी की प्रॉपर हुकूमत लेकर आए, इसमें सारी जो कौमियत है वो इसमें शामिल होनी चाहिए, तब ये बात बनेगी। तब जो या इलेक्शन कराएं, डेमोक्रेसी लेकर आए।
یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ابھی عوام خلاف ہو رہے ہیں، ان کے اندر سے ایک گروپ ہوگا یہی ایک دوسرے کو ماریں گے اور پھر الیکشن ہوگی، نئی حکومت بنے گی. ٹھیک، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے، معاملات مزید کدھر جائیں گے اس بریک کے بعد.